Begin our classes. Yesterday we were discussing about Antiochus Epiphanes, especially the Seleucid rule. So I won't be repeating all those things. I think you remember. If you don't remember, go back and look at your notes. So we stopped by discussing about Antiochus Epiphanes, Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes was the fourth king of Seleucid kingdom, and he was a very wicked king. He was persecuting Jews, and we told in what all ways he was persecuting Jews. What did he do? He restricted so many things in Judea. He banned Jewish religion. He stopped all the sacrifices and worships in the Jerusalem temple, and he even erected, he placed the altar of Zeus in the temple of the Lord, and also he built so many altars and idols across the land of Palestine. उसने क्या किया? मंदिर का जो बलिदान वगैरह है, आराधना, सब कुछ रोक दिया. यहूदी आराधना और यहूदी विश्वास, जीवन शैली सब कुछ बैन कर दिया. उसको मना कर दिया. ऐसा नियम लागू किया. यरूशलेम मंदिर के अंदर ज़्यूस देवता का आराधना के लिए वेदी उधर रखा. तो अन्य देवी देवताओं का आराधना से फ़लस्तीन को भर दिया. बहुत कुछ यहूदी लोग क्या किया, उसमें गिर गए. मतलब उन लोग विरोध नहीं कर पाया, पर ऐसा लोग भी है, उन लोग विरोध किया, नहीं मानेंगे करके क्या है, प्रतिज्ञा किया. तो उनमें से बहुत लोग मारा भी गया, तो वो अलग बात है. पर बहुत लोग क्या किया, ग्रीक कल्चर अपनाया, अडॉप्ट किया. मेनी पीपल अडॉप्टेड ग्रीक कल्चर, ऑल द रूल्स एंड regulations imposed by Antiochus Epiphanes. So we looked at all those things. So today the topic is, this all comes under Greek Empire, okay? But these all things are happening under Greek Empire. The topic Greek Empire. Jewish resistance. Resistance means, what is the meaning of resistance? विरोध करना. अगर मैं बोल रहा हूँ 11:30 बजे अंदर आना, तो आप लोग क्या करेंगे? 10 मिनट बाद ही, उसको क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार का क्या है, जो सर बोलते हैं वो बोलने दो, हम हमारा मर्जी करेंगे. ये एक प्रकार का विरोध है. विरोध मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, विरोध करना या नहीं मानना. अगर राजा कुछ बोल रहा है, हम नहीं मानेंगे करके जो एटीट्यूड और क्या है, उनके खिलाफ जो कुछ करना, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, विरोध करना. रेसिस्ट करना मतलब क्या है? विरोध करना. देयर इज अ वर्ड्स इन द लेटर ऑफ जेम्स, रेसिस्ट द डेविल. शैतान को सामना करो, मतलब शैतान से रेसिस्ट करो, उसका विरोध करो करके एक आयत है. आई थिंक इन 4th chapter it is there. So Jewish resistance means यहूदियों का विरोध. जो कुछ एंटियोकस एपिफानस ने नियम लेके आया था, यहूदी धर्म, यहूदी विश्वास, यहूदी नियमों का खिलाफ जो कुछ नियम एंटियोकस एपिफानस IV ने लेके आया है, उसका विरोध करने के लिए कुछ ग्रुप्स उधर उठा. So what is this topic of Jewish resistance? When Antiochus Epiphanes IV made lot of bans and restrictions in Judea, restricting and banning all the things related to Jewish faith, Jewish religion, Jewish customs, Jewish festivals, everything was banned. So there came some group of people who were resisting against all these things. This is the story, or this is the topic that dealing with different group of people and different movements that came in resisting the rule of Antiochus Epiphanes and the Greek culture. तो उस समय पर एंटियोकस एपिफानस का नियमों को और ग्रीक कल्चर के विरुद्ध कुछ ग्रुप्स, कुछ झुंड यहूदिया उस यरूशलेम में, यहूदिया में खड़े हो गया. उन ग्रुप्स के बारे में है आज का क्लास. हर्ष, इधर आके बैठना. So in the notes we will read, in the context of persecution by Antiochus Epiphanes, we see the rise of few groups and movements who resisted Hellenism.
They are as follows. In the context of persecution by Antiochus Epiphanes, Antiochus Epiphanes के द्वारा जो सताव हो रहे थे उसके बीच में we see rise मतलब उदय होना, उठना. We see the rise of few groups and movements, मतलब कुछ झुंड और कुछ आंदोलन जो उसके समय में उदय हुआ, उसके बारे में है आज का क्लास. ये जो ग्रुप्स और जो आंदोलन जो उधर हो रहा है वो किसके विरुद्ध था? हेलेनिज्म. हेलेनिज्म मतलब ग्रीक कल्चर का एक दूसरा वर्ड है हेलेनिज्म. हेलेनिज्म इज अनदर वर्ड फॉर ग्रीक कल्चर एंड आइडियाज. तो वो ग्रुप्स जो विरोध किया वो कौन सा है, जो आंदोलन जो हो रहा था वो कौन सा है करके हम पढ़ने वाला है. पहला ग्रुप क्या है? रीड द वर्ड हसीदीम. व्हाट इज द वर्ड? Hasidim. This is a Hebrew word. So there is a group of people called Hasidim. Hasidim नामक एक ग्रुप, एक झुंड उधर खड़े हो गया. उस झुंड के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. ये झुंड का क्या है? ये झुंड सब क्या है? एंटियोकस और ग्रीक कल्चर के विरुद्ध जो लोग खड़े हो गया उनके बारे में बोल रहा हूँ. These groups, what were these groups? These groups were standing against the rule of Antiochus Epiphanes and the Greek culture. So first one is Hasidim. They were a group of pious Jews. Pious means both भक्त religious बोलते हैं ना, लोग बहुत परमेश्वर का भक्त लोग हैं या पवित्र लोग. Pious people means, pious Jews means, pious मतलब बहुत भक्ति रखते हैं, भक्त या पवित्र लोग. So they were a group of pious Jews who were extremely devoted to the Jewish law and obedience to it. ये हसीदीम करके जो ग्रुप है उन लोग कैसा एक ग्रुप है? वो बहुत भक्ति रखने वाले लोग थे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, पवित्र लोग थे. और उन लोग क्या है? Who were extremely मतलब बहुत ज़्यादा. Who were extremely devoted मतलब बहुत समर्पित थे. Devoted to the Jewish law. यहूदियों का नियम जो मूसा के द्वारा दिया हुआ जो नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा उन लोग क्या थे? समर्पित थे, डेडिकेटेड थे या डिवोटेड थे. और उसको पालन करने में भी उन लोग अपने आप को पूरे रूप में समर्पित किया है. तो ऐसे एक झुंड को अंत्योकस को विरोध करना ही पड़ेगा. अंत्योकस क्या बोला? कुछ नहीं कर सकते, यहूदियों का नियम भी नहीं पालन कर सकते, आराधना भी नहीं कर सकते, बलिदान भी नहीं चढ़ा सकते, कुछ नहीं. यहूदियों का जो कुछ है सब कुछ बना किया. सो एंटियोकस एपिफानस restricted and banned everything that of Jews. So this group stood against Antiochus Epiphanes and the Greek ideologies. The Hebrew word Hasidim meant pious Jews. हसीदीम का मतलब क्या है? पायस पीपल. यहूदी उसके साथ जोड़ा गया है, पर पायस पीपल, पायस वंस मतलब बहुत भक्त लोग या पवित्र लोग. द एम ऑफ दिस ग्रुप वॉज टू अचीव रिलीजियस फ्रीडम. इस झुंड का मकसद क्या था? इन लोगों का क्या है टारगेट या लक्ष्य क्या था? रिलीजियस फ्रीडम मतलब धार्मिक रूप में स्वतंत्रता पाना. ये था इनका लक्ष्य. जो ये झुंड का लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता. क्यों चाहिए? क्योंकि एंटियोकस एपिफानस सब कुछ बैन करके रखा है, सब कुछ मना करके रखा है. इसलिए इनका लक्ष्य था टू अचीव मतलब पाना, टू अचीव द रिलीजियस फ्रीडम. दिस वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटियोकस एपिफानस बैनिंग ज्यूइश फेथ इन पैलेस्टीन. ये किस संदर्भ में हुआ? ये ग्रुप किस संदर्भ में उत्पन्न हुआ? एंटियोकस एपिफानस के टाइम में, जब वो जूइश विश्वास को बैन किया था यरूशलेम में, फ़लस्तीन में. इट इज़ सेड दैट फैरिसीज माइट हैव एमर्ज्ड आउट ऑफ दिस ग्रुप और इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ग्रुप. ये भी कहा जाता है फरीसी लोग जो हम नया नियम में देखते हैं वो शायद इस झुंड के अंदर से निकल कर आया हुआ दूसरा ग्रुप होगा या इन लोगों से प्रभावित हो गया है, क्योंकि उसी रीति में उनको भी हम देखते हैं. उन लोग भी क्या है? परमेश्वर के लिए बहुत समर्पित है और परमेश्वर का नियम पालन करने के लिए अपने आप को पूरे तौर पर समर्पण किया है. इट इज टोल्ड दैट Pharisees, the group, the Jewish group that we see in New Testament, might have come out of this group, or maybe these Pharisees were this Pharisaic group originated because of the influence
एक तो उन लोग शायद इसके अंदर से ही निकला हुआ एक ग्रुप होगा, या इनसे प्रभावित होकर फॉर्म किया हुआ एक ग्रुप होगा फारिसी, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, हमको पक्का नहीं जानता है। सो वी डोंट नो फॉर श्योर, बट सम सेज दैट फरीसीज केम आउट ऑफ दिस ग्रुप और इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ग्रुप हसीदीन। सो दिस इज अबाउट हसीदीन। हसीदीन के बारे में समझ में आ गया? एवरीथिंग क्लियर? एनी डाउट? ओके, सेकेंड वन इज, कैन यू रीड दैट वर्ड? मकाबियन रिवोल्ट। दिस इज मकाबियन रिवोल्ट। कौन सा ईयर से लेकर? 167 BC से लेकर 160 BC तक। रिवोल्ट मतलब क्या है? एक प्रकार का युद्ध है। रिवोल्ट क्या है? युद्ध। तो मकाबियन रिवोल्ट किस पीरियड में हो रहे थे? 167 से लेकर 160 BC तक। सो व्हाट इज मकाबियन रिवोल्ट? This revolt began with an incident happened in a Judean place called Modin during the persecution by Antiochus Epiphanes। ये मकाबियन रिवोल्ट, जो मकाबियों का जो युद्ध कब शुरू हुआ? एक घटना के साथ शुरू हुआ। वो घटना क्या है? वो घटना कहाँ हुआ? यहूदिया में मोदीन करके एक जगह है। मोदीन करके एक जगह है। उस जगह में कुछ घटना हुआ। उस समय का यहूदियों के ऊपर जो ग्रीक राजा था, यहूदियों के ऊपर जो जिसको भी अंतियोकस एपिफानस ने रखा है राजा के रूप में या अधिकारी के रूप में, उस अधिकारी ने कुछ ऑफिसर लोगों को भेजा। कहाँ? मोदीन में। सो द रूलर ओवर पैलेस्टीन सेंड सम ऑफिसर्स टू दिस प्लेस कॉल्ड Modin, and what they did, these people came to this village and they told a priest named Mattathias there was a priest named Mattathias. He was a very elderly man. So these officers from the Greek authorities came to this village called Modin and told this Mattathias, the elderly priest, to offer sacrifice to Greek gods. So Mattathias is a Jewish priest. He cannot worship idols. Yahweh is the only God for them. They should only worship Yahweh. But these Greek officials, in order to spread Greek culture and all, they came to this priest and told the priest to offer sacrifice to the Greek gods. So this Mattathias, because why they are telling like that? Because if priest offer sacrifice to Greek gods, many people also will follow this, because he is one of the leaders. So that's why they are telling to the priest. So this Mattathias, what he did? Mattathias did not obey. He refused. He told, I cannot do this. तो इधर क्या हो रहा है? जो ग्रीक अथॉरिटीज जो ऑफिसर्स को भेजा था, मोदीन जो शहर या एक गांव होगा, उस जगह में, छोटा सा एक जगह है, उस जगह में जब ऑफिसर्स आया, मट्टत्यास करके एक याजक था उधर, बहुत बुजुर्ग एक व्यक्ति था, उनसे आकर बोला, उनका ग्रीक देवी देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए बोला। मट्टत्यास ये कभी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक यहूदी याजक था। तो मट्टत्यास ने क्या बोला, मैं ये नहीं कर सकता करके मना किया। तब क्या हो गया, उन लोग किसी और से पूछा, किसी और यहूदी से बोला उनके परमेश्वरों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए। तो कोई और क्या किया, माना, मैं करूँगा करके कोई और यहूदी इसको मान लिया। तब मट्टत्यास ने क्या किया, जिस व्यक्ति जो यहूदी इसको माना उसको भी मार डाला और ऑफिसर्स में एक को भी तलवार से क्या किया, मार डाला। What happened when Mattathias was asked, he refused to sacrifice. Then another Jew came and told, I will do that. He agreed because they will be offering money or whatever. Maybe to please the authorities, one Jew was willing to sacrifice, do the sacrifice. So what Mattathias did, in his opinion, this should not happen. So Mattathias killed that Jew who was ready to do the sacrifice with his sword, and killed one of the officers also, and he fled to a hill country, hill place. मतलब ये सब करने के बाद मट्टत्यास ने क्या किया, भाग गया, क्योंकि उधर खड़े होंगे तो उसको भी
मार डालूंगा, क्योंकि इन दोनों को मारकर जल्दी तुरंत कहाँ गए, कोई पहाड़ों में जाकर छुप गए। वो और उनका बेटे लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं उनका पांच बेटे थे, वो और उनके बेटे लोगों को लेकर कहाँ गए, कुछ पहाड़ों के ऊपर जाकर छुप गए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द प्लेस कॉल्ड मुदीन। तो इधर से एक क्या है, एक युद्ध जैसा शुरू हो गया। अभी मटत्यास और ये मटत्यास एंड हिज सन्स went to these hills to hide. There what happened, they gathered all the faithful Jews who were willing to join them and they formed an army. What did मटत्यास do? मटत्यास ने क्या किया, इन लोग जब पहाड़ में जाकर छुप गए, मटत्यास और उनके बेटे, उधर क्या किया, जितने भी जो यहूदी लोग हैं वफादार थे, परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य थे, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाया, एक सेना को बनाया। किसके लिए, ग्रीक सेना के साथ, जो सेलूसिड सेना जो इसके ऊपर दबाव कर रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनको सता रहा है, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना उन लोग बनाया। सो दिस मटत्यास एंड हिज सन्स व्हेन दे वर इन हाइडिंग, व्हाट दे डिड, they gathered all the faithful Jews who were willing to fight and they formed an army in secret, and Greeks came to know about that. ये ग्रीक यूनानी जो सेना और अथॉरिटीज़ को ये पता चला, इन लोग ऐसे आर्मी फॉर्म किया है करके पता चला, तब इन लोग क्या किया, ये ग्रीक आर्मी क्या किया, ग्रीक आर्मी सबत के दिन आकर इनको अटैक किया। सबत के दिन क्यों किया, क्योंकि इन लोग बहुत भक्त लोग हैं, तो सबत के दिन इन लोग युद्ध नहीं करते हैं या कोई काम नहीं करते हैं। तो ये ग्रीक को पता चला, या किसी ने जाकर इनके अंदर से कोई आकर बताया होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं ना यहूदी लोग, ग्रीक लोग की तरफ विश्वासी हो गया है, ग्रीक कल्चर जो अडॉप्ट किया, ऐसे लोग भी हैं अंदर। तो किसी ने आइडिया दिया होगा सबत में जाकर उनको हमला करेंगे तो लोग वापस कुछ नहीं करेंगे करके। सो द ग्रीक पीपल, द ग्रीक आर्मी, व्हाट दे डिड इज दे प्लान टू अटैक दिस आर्मी ऑफ मटत्यास ऑन सबत, so that they won't be retaliating, they won't be attacking back. So according to that, this army went, attacked them, lot of people died because they did not fight back, because that was the Sabbath for the Lord, so they don't want to break the law. So that time many people died when they attacked on Sabbath. After that, this army, this group of Mattathias, they decided we will fight. If they come on Sabbath also, we will. They decided, because there is no another way. If they come on every Sabbath and attack, they will be all killed. So they decided we will fight for our life. हम उधर के लिए, युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, हमें हमला करने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, हम डिफेंड करेंगे। हमें हमारा जान बचाने के लिए हम लड़ सकते हैं, पर युद्ध के लिए हम नहीं जाएंगे। So this was their stand. So from next time onwards, they decided we will not go and fight to them on Sabbath, but if they come to fight, we will defend ourselves. We will defend for our life. So that was their decision. So that is written here. Then Mattathias fled, this line, fifth line. Then Mattathias fled into the hills with his sons and gathered an army of faithful Jews there. They were attacked on a Sabbath and many were killed because they observed मतलब पालन करना, because they observed the Sabbath of the Lord and refused to fight back. Refuse मतलब मना करना. Later they decided to fight on Sabbath to defend themselves. मतलब बाद में उन लोग फैसला लिया हम डिफेंड मतलब अपने आप को बचाना, डिफेंड themselves. They caused the Greeks great trouble by frequent guerrilla attacks. ये जो सेना है, इन लोग किस तरीके से युद्ध कर रहे थे? गोरिल्ला फाइट मतलब क्या है? गोरिल्ला फाइट ऐसा एक युद्ध करने का एक तरीका है। कैसा एक तरीका? छुप कर हमला करना। मतलब इन लोग कहाँ छुपे थे? पहाड़ों में या जंगलों में छुपे थे। कौन? ये सेना। किसके सेना? मटत्यास का सेना. This army of this Mattathias, they were in jungles, they were in forests and on these mountains. So they were hiding and fighting.
So this Greek army don't know the places, they don't know about the forests and the places there, because these people are the people of that land. They know all places, where all they can hide, where all they can go and hide from this Greek army. But Greek people were not very well versed with the geography. Just a minute, please, excuse me. So talking about this Maccabees, this Mattathias, the army of Mattathias, they are fighting. What was the method of their fighting? गोरिल्ला वारफेयर, मतलब हाँ, चुप के, मतलब उन लोग चुप रहते मतलब छिपा रहते हैं, चुप रहते नहीं, छिपा रहते हैं. They were hiding, and when Greek army comes, they were not able to find them. क्योंकि ये मट्टथियास के लोग का, उस जगह का लोग है, उनको पता है कहाँ जाकर छिपना है करके, उनको अच्छा से पता है. पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं जगहों के बारे में. तो इन लोग हाइड करते हुए, छिपाकर क्या है, अपने खुद को छिपाते हुए युद्ध करते हैं. या कहीं ऊपर क्या है, पेड़ के ऊपर बैठा होगा, उधर से तीर मार रहे होंगे, तो इनको पता नहीं चलता है. तो कई ऐसा तरीका, इस तरीका को बोलते हैं गोरिल्ला वारफेयर, गोरिल्ला अटैक्स. तो इनका तरीका ये था लड़ने का, क्योंकि ग्रीक आर्मी के साथ बहुत कुछ है, उनके साथ अच्छे वेपन्स है. द ग्रीक आर्मी हैज़ लॉट ऑफ वेपन्स एंड लॉट ऑफ मॉडर्न थिंग्स टू फाइट, बट दीज पीपल वर पुअर पीपल विथ, मे बी दे ओनली हैव सम स्पीयर्स, बालू होगा या कुछ तलवार होगा, इन चीज़ों से लड़ते हैं. बट ग्रीक आर्मी इज़ वेरी गुड आर्मी, सो हाउ दे कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड फाइट. दैट्स वाई दे वर हाइडिंग एंड फाइटिंग. इन लोग सामने जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, इनके साथ इतना लोग भी नहीं है, इतना ज़्यादा वेपन्स भी नहीं है, इसलिए इन लोग गोरिल्ला वारफेयर इस्तेमाल करते थे. इसलिए ये गोरिल्ला वारफेयर के द्वारा बहुत अटैक किसने किया, मट्टथियास का आर्मी किसके ऊपर किया, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं कर पा रहे. तो बहुत जो इतना साल, जो 167 से लेकर 160 BC तक जितना भी युद्ध हुआ, कभी भी ग्रीक आर्मी इनसे जीता एक बार भी क्या है, जीता नहीं. हर एक बार कौन जीत रहे थे, नुकसान किसको हो रहे थे, ग्रीक आर्मी को हो रहे थे. When Mattathias died, जब ये मट्टथियास जो लीडर था, when he died, his son Judas with the nickname Maccabeus became the leader and his army came to be known as Maccabees. ये जो Maccabees जो नाम कहाँ से आया, मट्टथियास के बाद, after Mattathias his son Judas become the leader of this army. So he had another name, a nickname, दूसरा एक नाम भी था उसका, वो क्या है, Maccabeus. Maccabeus का मतलब उधर लिखा है ब्रैकेट में हैमर, हथौड़ा. और शायद ऐसे इसलिए लिखा होगा, ग्रीक लोगों के लिए तोड़ने के लिए परमेश्वर इसको नियुक्त किया है करके डाला होगा ये नाम, हथौड़ा करके नाम है मकाबियस. तो वो इस आर्मी का लीडर बन गया, और उनके पीछे जितने लोग हैं उन सबको मिलाकर क्या बुलाते थे, मक्काबीस. तो मक्काबीस के पीछे जितने लोग थे उस आर्मी, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, मक्काबीस बोलते हैं. तो मक्काबीस और उनका युद्धों का कहानी है पहला मक्काबीस का किताब, जो मैंने कल बोल रहे थे, जो एक्स्ट्रा किताब जो ऐड किया गया था बाइबल में. सो व्हेन मट्टथियास डाइड, हिज सन जूडस विद द निकनेम Maccabeus became the leader and his army came to be known as Maccabees. The Hasidim group also joined them as warriors. तो Maccabees का ग्रुप अलग है, this Maccabean group is different. So who also joined them? जो हसीदिम, जो पहले हमने बोला था, this Hasidim group also joined with Maccabees in this fight, in this. तो मकाबी लोगों के साथ हसीदिम भी जुड़ गए इस फाइट के लिए. The Greeks tried several times to defeat them but failed every time. ग्रीक आर्मी बहुत बार कोशिश किया इस मकाबियन आर्मी को ख़त्म करने के लिए, पर हर बार कौन हार गया, ग्रीक्स. This Greek army tried many times, several times they tried to attack and finish off this Maccabean army, but
Every time they failed to do that. That story is written in 1 Maccabees 3 and 4 chapter. Later a major part of Greek army withdrew from Palestine. तो बहुत कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है. They tried lot of time. They tried lot of times, but they were not able to succeed. उन लोग जीत नहीं पाया. इसलिए एक मेन जो आर्मी का भाग वापस चले गए. कहाँ से? फ़लस्तीन से. बहुत बड़ा आर्मी को उधर रखा था, पर उसमें से आधा से ज़्यादा भाग, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे. सो दिस बिग आर्मी this army was not able to do anything there. So a major part of army returned back. So only a few soldiers, a small group of army was there to control Palestine. So what happened next? Later a major part of Greek army withdrew, मतलब पीछे हटाया, वापस गया, withdrew from Palestine. Then Judas and his army entered in Jerusalem, cleansed the temple from all pagan things, and rededicated the temple in 164 BC. तो क्या हुआ? ये आर्मी जब विड्रॉ हुआ, इन लोग जब छिपा कर बैठा है ना, कई जगहों में, पहाड़ों में इधर उधर छिपके बैठा है, छिपा के उन लोग हाइडिंग में है. इन लोग क्या किया? उधर से बाहर आया. ये आर्मी कहाँ आ गया? यरूशलेम शहर में आ गया, मंदिर में आ गया. मंदिर को क्या किया? क्लीन किया का मतलब क्या है? साफ सफाई नहीं. उधर बहुत सारे क्या है, अन्य जातियों का क्या था? वेदी था, मूर्ति था. इन सारे चीज़ क्या किया? परमेश्वर का मंदिर से हटाया और उसको फिर से परमेश्वर के लिए पुनः समर्पित किया. What they did? When this army withdrew, when army went back, a big portion of a major part of this army went back from this place. These the Judas and his army, Maccabean army, came out of hiding. They came in open. They came to Jerusalem city, went to Jerusalem temple. They cleansed the temple from all pagan things, all the things that related to Gentile worship, which were in Jerusalem. Who kept all these things? Antiochus Epiphanes. So they cleansed everything and they rededicated this temple to Yahweh. They rededicated this temple to the Lord. तो फिर से ये मंदिर किसके लिए समर्पण किया? यहोवा के लिए, यहोवा का आराधना के लिए पूर्ण रूप में फिर से समर्पण किया. वो कब हुआ? 164 BC में. It happened at 164 BC. तो इसका यादगारी में एक पर्व भी शुरू किया, नया पर्व. उसका नाम है हनुका. To celebrate this victory and this cleansing and rededication of temple, they began a new festival. The name of the festival is Hanukkah. The meaning of Hanukkah is dedication. एस्तर के समय में कौन सा फेस्टिवल शुरू हुआ था? What was the festival began at the time of Esther? Purim. To celebrate the victory over Haman. This is celebrated for the memory of the victory over Antiochus Epiphanes and rededication of the temple. इसमें बहुत सारे, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, उधर बहुत सारे लाइट्स जलाकर, मतलब ये अंधकार के ऊपर जीते, इसलिए लाइट्स जलाकर क्या करता है? हर एक घर में लाइट्स जलाकर, कैंडल, बत्ती वगैरह, उनका अलग अलग टाइप का बत्ती है. 8 एक ऐसा क्या है, कैंडल है जिसमें क्या है, 8 बत्तियाँ होता है. हर घर में वो जलाकर ये फेस्टिवल हर एक साल उन लोग मनाते हैं. सो दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल हनुका. एवरी फैमिलीज विल light candles. There is a traditional type of candle. They light that candle. This symbolizes the victory over darkness. So they celebrated Hanukkah every year. उसी वर्ष में क्या हुआ? एंटियोकस एपिफानस क्या हुआ? मर गया. वो पर्शिया में कहीं युद्ध के लिए गया था, उसके बीच में बीमारी से क्या हुआ? मर गया. In the same year, Antiochus Epiphanes died because he went for a battle in Persia, and in between he became sick and he died. So this is the story of Maccabean revolt. There is 2 more paragraphs that we will see later. So I am stopping the class.